नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सीपीएम नेता शंकर घोष ने पार्टी को कहा अलविदा। पार्टी नेतृत्व से नाराजगी के कारण लिया फैसला। पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद के कारण सीपीएम के दिग्गज नेता शंकर घोष ने बुधवार को पार्टी को अलविदा कह दिया है। बुधवार को पार्टी आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शंकर घोष ने कहा कि छात्र राजनीति से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। उसके बाद वे पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियों के निभाते गए, पर पिछले 3-4 सालों में पार्टी के भीतर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। वे कई बार अपनी बातें पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखने की कोशिश की, पर हर बार उसे अनदेखा कर दिया जाता था। पार्टी के भीतर उनका दम घुट रहा था। इस घुटन से आजादी के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। घोष ने कहा कि अपनी बात वे कई बार पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं के समक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें तवज्जो नहीं दी। इस वजह से पार्टी के सिद्धांतों और उनके बीच लगातार खाई बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं के बीच रहकर अंतर्द्वंद के बीच काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लिया। প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা তো ভোটের রাজনীতি। সব মানুষের মস্তিষ্কেও যদি আমি পড়তে পারতাম তাহলে তো ভালো হতো। আমি এই মুহূর্তে একদম নিজেকে শান্ত রাখতে চাইছি। কোনো উত্তরই আমি দেব না। কি মা ইয়ং জেনারেশনে উঠে আসা উচিত দলের মধ্যে? এবার দলও সেই কথাই বলছে। এখন তো আর আমি দলের অংশ নই। গতকাল তো ছিলেন। গতকাল দিলাম না, গতকাল ছিলাম। গতকাল এই প্রশ্ন আগে করলে আমি উত্তর দিতাম। এখন আর দলের বিষয় গতকালের কথা তো আর নেই। গতকাল অবধি এটা পাস্ট টেন্স। আজকে দেখুন, আমাদের পার্টিতে এরকম পদ্ধতি নেই। প্র্যাকটিক্যালি পার্টিতে পদত্যাগ করলে সেটা বহিষ্কার হিসাবেই ধরা হয়। আমি গতকাল চিঠি দিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম যে এর মধ্যে হয়তো সেরকম কোনো সিদ্ধান্ত, আমি তো ওনাদেরকে না, আমি পার্টিকে বুকে জড়িয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম, সেটা পারছিলাম না। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা বামপন্থী রাজনীতিতে আসি এই ভেবে সমাজ বদলাবো, কোনো কোথাও ক্যান্ডিডেট হবো এই জন্য আমরা করতে আসি না। আমার সাথে যোগাযোগ করে, আমার সাথে কখনো কোনো কথা আমি বলতে পারবো, আমার সাথে কোনো কথা হয়নি, কোনো দিনই কথা হয়নি সুকান্ত বাবু আমার সাথে। আমি এই মুহূর্তে পলিটিক্স থেকে একটু নিজেকে সরিয়ে রেখেছি, একটু নিজেকে নিয়ে, বেশি দিন না, খুব দ্রুত আমি সিদ্ধান্ত, আমি পথ খুঁজছি এবং আমাকে দ্রুত পথ খুঁজতে হবে। সেই পথ যদি আমি খুঁজে পাই দ্রুত জানিয়ে দেবো। তবে মনে রাখবেন, আমি সাধারণভাবে রাজনীতির ছেলে, রাজনীতি করেছি, ফলে স্বাভাবিকভাবে রাজনীতি করার সম্ভাবনা বেশি, আর বিকল্প তো আছেই রাজনীতির থেকে একেবারে না। প্রথম কথা হচ্ছে আমি তো কখনো বলিনি, আমি আমার জেলার একটা কমিটির স্তরের কথা বলেছি। বাম রাজনীতিতে এই ধরনের সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে তরুণদের যেতে হয় কিনা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি যে কমিটির স্তরে ছিলাম সেখানে যে সমস্যাগুলো ফেস করেছি সেইটা এই চিঠির মধ্যে তো আমি লিখেছি। ঠিক লিখিনি, এক বা ওই একাংশ, মানে একেবারে ছোট অংশ, তারাই সব, আর কেউ না, তাদেরই মত। কোনো ব্যক্তিগতভাবে কারো নাম নেওয়ার মতন আমার এই পার্টির, শুনুন, এই পার্টি আমাকে একজন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এটা তো সবসময় এই যন্ত্রণাটা কেন হয়েছে, আর 10টা রাজনৈতিক জায়গার সাথে এখানে একটা পার্থক্য। আমাদেরকে শেখানো হয় ছোটোর থেকে যে বামপন্থাটা একটা মতাদর্শ নয়, এটা একটা জীবন চরিত, বা এটা একটা
ওয়ে অফ লিভিং, ফলে সেইটাই শিখেছি। সেখানে অনেকগুলো জিনিস আছে, তার মধ্যে অনেকটা ভালো কিছু। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি ওই পার্টটা এখনো যাইনি, তবু আমি সাধুদা একটা কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আমরা শিখে তারপরে একটা কিছু বলি। दूसरे दलों को तोड़ना भाजपा का एजेंडा बन गया है, ये बातें कही है रंजन सरकार ने। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष रंजन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा का बंगाल में कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, इसी कारण यह पार्टी दूसरे दलों को तोड़ने में लगी है। सरकार ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद एक राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार होता है। भाजपा दूसरे दलों के नेताओं व कर्मियों को तोड़कर अपने दल में शामिल करने में लगी है। सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक परिवार की तरह है। परिवार का प्रत्येक सदस्य एकजुट होकर पार्टी के विकास के लिए कार्य करते हैं व सोचते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की मुखिया अभिभावक के समान होती है, वे जो निर्देश देती है पार्टी का हर कार्यकर्ता उसे स्वीकार करता है। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस द्वारा बाहर के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस हमेशा लोगों के बीच कार्य करता है। कोविड महामारी के समय भी तृणमूल कार्यकर्ता लोगों की सहायता में लगे रहे और आगे भी लगे रहेंगे। उन्होंने कहा, चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन लोगों की सेवा जारी रहेगी। প্রচার করতে পারেনি, তারপরেই বিজেপির দখলে থাকা দুটি পুরসভা হেরে যায়। জানুয়ারিতে এআইটিসি ভাটপাড়া মিউনিসিপাল পুনর্দখল করে। এর মধ্যেই বোঝা যায় বাংলায় তৃণমূল স্তরে বিজেপির কোনো উপস্থিতি নেই। বিজেপি 2021-এ তারা আমাদের রাজ্যে দাঁত ফোটাতে পারবে না। এটাই ছিল আমাদের আজকের দিনে বলার। আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের সামনে রাখতে পারেন। প্রথম পাতায় প্রথম লাইনটা আপনি ভালো করে শোনেননি। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস তারা বিভিন্ন সময়ে কিছু মানুষকে মগজধোলাই করার চেষ্টা করছেন। আমরা চাই না আমাদের দল থেকে একজন সহকর্মী তারা আমাদের দল থেকে চলে যাক, তারা কষ্ট পাক, দুঃখ পাক। আমরা একটা বড় পরিবার, যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের অভিভাবক। আমাদেরকে তার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তার নেতৃত্বে 2021 যে কঠিন লড়াই, সাম্প্রদায়িক শক্তি বাম, বিজেপি, কংগ্রেস, এই যে ঐক্যবদ্ধ লড়াই একজন মহিলার বিরুদ্ধে, 65 বছরের একজন মহিলা হাওয়াই চটি পড়ে গত 10 বছরে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি অধিকার দিয়েছেন, তার সঙ্গে থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। তারপরেও যদি কেউ দল থেকে চলে যায় তাহলে আমরা দুঃখ পাবো নিশ্চিতভাবে, কিন্তু আমাদের দলের কিছু আসে যায় না। একজন করে বলুন, আমি এখনো পাইনি। তবে একজন সহকর্মী তিনি বিভিন্ন সময় সাংবাদিক সম্মেলন করে বা বিভিন্ন সময়ে তার মতামত প্রকাশ করেছেন, তাতে দল কিছু সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে নিচ্ছে এবং সেটা সঠিক সময় চিঠি পেলে আমরা জানিয়ে দেব। না, একটা সব কিছুরই একটা প্রক্রিয়া থাকে। হঠাৎ করে যেমন দলে কাউকে নেওয়া যায় না, হঠাৎ করে কাউকে দল থেকে কিছু অ্যাকশন নেওয়া যায় না, বহিষ্কার করা যায় না। সুতরাং সে তো প্রশ্ন করতে পারে যে আমাকে তো কোনো জানানো হলো না যে আমি কি দোষ করলাম। নিশ্চিতভাবে তার চিঠি আসলে, সে আমাকে একটা SMS করেছিল, আমি তার SMS-এর জবাব দিয়েছি যে আপনার যদি পদত্যাগপত্র দেওয়ার থাকে আপনি আমার হোয়াটসঅ্যাপে দিতে পারেন। আমি যেহেতু কলকাতায় ছিলাম, কিন্তু আপনাকে আমি আরেকবার চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি, যেটা আমার দলীয় নেতৃত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, আমি সেটাই করেছি এবং বাকিটাও আমার দলীয় নেতৃত্ব যা বলবেন, যেভাবে বলবেন, আমাদের দল যেভাবে বলবেন, আমরা সেইভাবেই আমাদের। जिस व्यक्ति से सिलीगुड़ी का विकास होगा उसी को उम्मीदवार बनाएगी भाजपा। महंगाई को लेकर नाटक कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यह बातें कही है दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट ने। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्ट ने हाल ही में तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ रोड शो करने को नाटक करार दिया है। बुधवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो महंगाई दर 2 डिजिट तक पहुंच गई थी, लेकिन अब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां 4 से 5% के बीच है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना सच्चाई जाने बयानबाजी कर रही है। भाजपा द्वारा सिलीगुड़ी में उम्मीदवारों के ऐलान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सांसद राजू बिस्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति से सिलीगुड़ी का विकास संभव होगा उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा।
सिलीगुड़ी मेरा घर है भैया, मैं 7 तारीख भी यहीं था। और मीडिया के सब साथियों को एक बार फिर सबको मेरा नमस्कार। और 7 तारीख को मैं कलकत्ता था मोदी जी के कार्यक्रम में। मुझे पता लगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिलीगुड़ी में आकर के महंगाई के ऊपर में बहुत सारा लेक्चर दिया। तो मुझे लगा वो भी 7 तारीख को जो कुछ भी ड्रामा हुआ उसके ऊपर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं। देखिए, पहली बात तो ममता दीदी को ये मालूम होना चाहिए कि जब वो महंगाई के विषय के बारे में कुछ बोलती हैं तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीए के सरकार के समय महंगाई दर डबल डिजिट पे था, यानी 10% से ज़्यादा था। और पिछले 6 साल से महंगाई दर 4 से लेकर के 4.5% के बीच में है। अगर इसको मैं उदाहरण के तौर पे देखूं तो आप ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी मिडिल क्लास व्यक्ति या गरीब व्यक्ति ने घर बनाने के लिए या बेटी की शादी के लिए अगर बैंक से भी 25 लाख का लोन लिया था तो 2014 तक उसको ईएमआई के नाते 25,000 रुपये महीना बैंक को चुकाना पड़ता था। और आज वही ईएमआई घट करके 19,000 रुपये करीब है, यानी 6,000 रुपये महीने की बचत, साल का 72,000 रुपये की बचत। ये हम सबको पता है। जहाँ तक आज तेल और गैस की बात चल रही है, मुख्यमंत्री जी को ये भी पता होना चाहिए कि जो तेल बनाने उत्पादन करने वाले देश हैं वो आपस में मिल करके उन्होंने प्रोडक्शन को कट किया है, उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी है। और दूसरा जो है, कच्चे तेल में भी कीमतें बढ़ी हैं। और ये टेम्परेरी फेज़ है, आने वाले समय में ये भी सब ठीक होगा। लेकिन जवाब ममता दीदी को देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली पश्चिम बंगाल में क्यों? और पश्चिम बंगाल में दूसरी तरह की भी धांधली होती है। आप बिजली का बिल देखिए, हर एक महीना आए तो लोगों को काफ़ी बचत हो सकती है। 3-3 महीने का बिल जो है लोगों को मिलता है, इसके कारण भी यहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट महंगाई के ऊपर में ममता दीदी को लेक्चर नहीं देना चाहिए। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, 10 साल में गरीब जनता के पैसा खर्च करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर समिट किया और करोड़ों रुपए उसके ऊपर में पानी के तरह बहाए गए जनता का पैसा, और 15 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ और बदले में 14,500 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट अभी तक हो पाया है, यानी 1% से भी कम इन्वेस्टमेंट हुआ है। जवाब ममता दीदी को देना चाहिए। तृणमूल की चुनावी सभा में दिग्गज नेता गायब, सवालों पर पत्रकारों से उलझे जिलाध्यक्ष। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस की चुनावी सभा बुधवार को आयोजित की गई। हालांकि सभा में तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अनुपस्थित रहे। इस बारे में पूछे गए सवाल पर टीएमसी के अलीपुरद्वार जिलाध्यक्ष मृदुल गोस्वामी भड़क उठे। जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार चौपाटी इलाके में 13 पंथ भवन में बुधवार दोपहर को तृणमूल जिला कमेटी की चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अलीपुरद्वार के जिलाध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, जिले के प्रत्येक ब्लॉक एवं अंचल के अध्यक्ष, अलीपुरद्वार विधानसभा के उम्मीदवार उपस्थित थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन शर्मा, जिला परिषद के सभाधिपति शीला दास सरकार, सहकारी सभाधिपति मनोरंजन दे जैसे दिग्गज नेता उपस्थित नहीं थे। इस बारे में जब पत्रकारों ने जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी से सवाल किया तो वे पत्रकारों से उलझ गए। নির্বাচনে রণকৌশল তৈরি করছে, সেই ব্যাপারে আলোচনা আছে। এটা প্রেসকে বলা যাবে না, আমার কৌশল ওটাকে অন্যরা জেনে যাবে। তাদেরকে ডেকেছিলেন আর জেলার নেতৃত্ব এবং ক্যান্ডিডেট, জেলার অনেক নেতৃত্বই দেখা গেল দাদা আজকে আসেনি। কে আসেনি সেটা তার অসুবিধা ছিল, আসতে পারে। আমার কাছে তো আছে, আমার এক জেলা কমিটির মেম্বার না পার্মানেন্ট ইনভাইটেড, তার ক্যান্সার ধরা পড়েছে, সে শিলিগুড়ি। একজন আমার তার মিসেস অসুস্থ, সে নিবেদিত নার্সিং। আমরা একদিনের আধা দিনের নোটিশে মিটিংটা করেছি, তো অনেকেই আসতে পারেননি, এটা ঘটনা। তারা
তাদের না আসার কারণটাও আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। এটাই, অন্য কিছু খুঁজতে যাবেন না আপনার। জেলা নেতৃত্বের প্রধান যে মুখ মোহন শর্মা যেরকম আছে, মনোরঞ্জন দে, শিলা দাস সরকার, এরা সবাই জেলা পরিষদে। আপনাদের কি আমাদের মুখগুলো খারাপ লাগছে? আমাদের মুখগুলো খারাপ লাগছে? আমাদের আশঙ্কা, আমাদের জেলা, আমাদের মিটিংয়ে কে আসলো না সেই কৈফিয়ত তো আপনাদের দেবো না আমি। আপনারা কে আসলো না সেটা বলছেন, এতগুলো লোক ছিল সেটা তো জিজ্ঞেস করছেন না। না ওটা না, কেন কে আসলো না সেটা তো আপনাদের জিজ্ঞাসা নয়। আপনাদের জিজ্ঞাসা কি কে আসলো না? অসুবিধা থাকতে পারে। মনোরঞ্জন দে অনওয়ে বাইরে আছে, আমাকে বলেছে আসলো, সন্ধ্যাবেলা আসতে পারেনি রাস্তায়। ওর সাথে কথা হয়েছে, আমার সাথে কথা হয়েছে। सिलीगुड़ी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने निकाली रैली। सिलीगुड़ी में बुधवार को तिब्बती समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली। रैली शहर के मल्लागुड़ी संलग्न इलाके से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए कोट मोड़ पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में तिब्बती समुदाय के लोग पारंपरिक पोशाक में नजर आए। आयोजकों ने बताया कि 10 मार्च को अपराइजिंग डे के अवसर पर प्रतिवर्ष तिब्बती समुदाय की ओर से एक धार्मिक रैली का आयोजन किया जाता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है?
और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीपीएम नेता शंकर घोष का पार्टी से मोहभंग, जिला नेतृत्व को लिखा पत्र। विधानसभा चुनाव से पूर्व सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार को लेकर पार्टी में बगावत के बीच सीपीएम नेता शंकर घोष ने अचानक पार्टी से खफा होकर अलग रास्ता अख्तियार करते दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार को अचानक शंकर घोष द्वारा पार्टी नेतृत्व को लिखी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए अपने दायित्व से अवकाश लेने की अनुमति की मांग की है। दूसरी ओर जिला वाम मोर्चा के संयोजक जिबेश सरकार ने कहा कि उन्हें यह शंकर घोष का पत्र मिला है। उन्होंने इस बारे में शंकर घोष से बात की है। विचार विमर्श के जरिए समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। प्रथम कथाटा হচ্ছে কোনো পদত্যাগপত্র পাঠায়নি। শঙ্করের কিছু পারিবারিক সমস্যা, মা অসুস্থ, তাছাড়াও ওর কিছু বিষয় আছে এবং পার্টির মধ্যেও ওর কিছু বক্তব্য, সে সবসময় আমাদের পার্টিতে থাকে, প্রত্যেকেরই থাকে। এই বিষয়গুলো ও আমার কাছে জানিয়েছে এবং পাশাপাশি ওটা বলেছে ও আমার কাছে একটা অনুমতি চেয়েছে, অনুমতি চেয়েছে যে ও কিছু দায়িত্বের থেকে অব্যাহতি নিতে চায়। আমি ওর সাথে কথা বলেছি যে এই বিষয়গুলো নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করব। তোমার সমস্যাগুলো আমরা বুঝতে পারছি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথাও বলবো এবং যাতে এই সমস্যাগুলো সমাধান হয় বা তোমার যে প্রশ্নগুলো সে রাজনৈতিকভাবে সেগুলোও যাতে ব্যাখ্যা করা যায়, আমরা উপযুক্ত স্তরে আলোচনা করব। একটা কথা যেটা বলা হচ্ছে বারবার যে ও পদত্যাগ করেছে, না, ও কিছু কাজের থেকে ওর যে দায়িত্ব সেখান থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্য আমার কাছে একটা অনুমতি চেয়ে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। তারপরে ওর সাথে আমি কথা বলেছি। আশা করছি যে এই সমস্যাগুলো এগুলো মিটে যাবে, কথাবার্তা হবে, আলোচনা হবে। ওর মা অসুস্থ বলে আর একটু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের খুবই অসুস্থ ওর মা। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, ये बात कही है गुलाम रब्बानी ने। राज्य के श्रम मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बुधवार को पांजीपाड़ा में टीएमसी के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुलाम रब्बानी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है, उनकी समस्याएं नहीं सुलझा रही है, बल्कि भाजपा नेता इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे में व्यस्त है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के डीजीपी बदलने पर भी नाराजगी जताई और यह भी कहा कि सब राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। गुलाम रब्बानी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार का गठन करना आवश्यक है। चुनाव परिणाम को लेकर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता अपना सही फैसला सुनाएगी। না, প্রচার তো আমাদের আগে থেকে হয়ে আসছে। প্রচার তো পার ডে আমাদের হয়, মহিলা আলাদা করে, যুব আলাদা করে, ছাত্র আলাদা করে, মাদার আলাদা করে, আইনটিসি আলাদা করে, তারপরে আপনার ST SSL আলাদা করে,
তারপরে পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা সদস্য তারা আলাদা করে, যারা কন্টেস্টেড তারা আলাদা করে, পঞ্চায়েত সমিতি আলাদা করে, জেলা আলাদা, সবাই আমরা প্রচারে আছি। আর আজকে যে লোকগুলো জমায়েত হয়েছে, আজকে আজ থেকে একটু বেশি হবে। জিতাবে তো, এখন তো আমি প্রার্থী, যখন আমি প্রার্থী ছিলাম না 2019-এ কানাডা প্রার্থী ছিলেন, তখন আমাকে বলতে মানে সুবিধা ছিল, সুযোগ ছিল কি আমি তখন ওয়ার্কার ছিলাম। আজকে আমি নিজে প্রার্থী হয়েছি, তা আমার বলার আমি কতটুকু বলবো এটা আমি জানি না। পাবলিক বলবে, এখানকার জনসাধারণ বলবে, যারা প্রতিনিধিরা আছেন তারা বলবে, যারা কন্টেস্টেড তারা বলবে। अग्निअस्त्र के साथ 2 युवक गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पूर्व कूच बिहार जिले में हथियार बरामदगी का सिलसिला जारी है। इस बीच पुलिस ने अग्निअस्त्र व 1 राउंड कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। माताभंगा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ दुर्जी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि बुधवार सुबह कुरशामारी बाजार से टाटा सुमो पर सवार होकर 2 युवक जा रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर माताभंगा थाने की पुलिस ने गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से एक 9 mm पिस्तौल और एक ताज़ा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के नाम मोहम्मद अब्दुल अलीम और अनवर हुसैन है। मोहम्मद अब्दुल अलीम कुरशामारी इलाके का रहने वाला है, जबकि अनवर हुसैन पांचगार इलाके का निवासी बताया जा रहा है। आज सुबह दोनों टाटा सुमो से हथियार लेकर उसे बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों धर दबोच लिया। दोनों को आज अदालत में पेश किया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर इस बारे में और अधिक जानकारियां जुटाई जा रही है। हेमताबाद से खड़े तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यजीत बर्मन ने शुरू किया चुनाव प्रचार। अभी तक उत्तर बंगाल में अन्य राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ही बार में तृणमूल के सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। हालांकि उन्होंने पहाड़ के सहयोगी के लिए 3 सीटें छोड़ दी है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद विधानसभा केंद्र से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्यजीत बर्मन को उम्मीदवार बनाया है। अब उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हेमताबाद विधानसभा केंद्र के अंतर्गत जगदीशपुर ग्राम पंचायत के हलालपुर, जगदीशपुर गांव सहित विभिन्न इलाकों में आज वे गए और लोगों से मिले। प्रत्येक घर जाकर उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनकी सभी मांगों और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में जीत हासिल कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उपहार देंगे। बर्मन ने कहा कि जनता का व्यापक आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। आज के 2 নং জগদীশপুর অঞ্চল থেকে জগদীশপুর গ্রামে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করলাম। এই প্রচারে আমাদের অঞ্চল কমিটি থেকে শুরু করে মেম্বার এবং অঞ্চলের সব লিডাররাই আছে। আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, মানুষের আশীর্বাদ নিচ্ছি, মানুষের আশীর্বাদও করছে এবং আমাদেরকে ভোট দিবেন। नए मतदाताओं को दी गई ईवीएम की जानकारी। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज ब्लॉक प्रशासन की ओर से बुधवार को नए मतदाताओं को ईवीएम की जानकारी दी गई। बुधवार को कालियागंज ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में नए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम एवं वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल अर्थात वीवीपैट के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने मताधिकार के बारे में जागरूक किया गया। कालियागंज ब्लॉक प्रशासन की ओर से आज अस्थायी शिविर लगाकर नए मतदाताओं को ईवीएम के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इस बार कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को मानते हुए मतदान होगा। कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में भी नए मतदाताओं को जानकारी दी गई। इसके साथ ही ब्लॉक प्रशासन की ओर से बताया गया कि मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूक अभियान चलाया जाएगा। एक्साइटेड बोलते कि মানে নতুন ভোট হিসেবে তো একটি মানে আমার নতুন ভোট হিসেবে তো আমাদের একটা মানে রাজ্যে মানে নতুন কাউকে আনা, রাজ্যের নতুন কিছু ঠিক করা, মানে কাকে আমরা নিয়ে আসবো না নিয়ে আসবো, রাজ্যের উন্নতিরও ব্যাপার আছে সেটাতে, এবং রাজ্যের উন্নতির ব্যাপার এবং সেখান থেকে নতুন কিছু আরও নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে এবং আমাদের নতুন প্রজন্ম হিসেবে আরও আমরা যেতে চাবো যে আমাদের দেশের বা রাজ্যের আরও উন্নতি হোক, আরও কী পথে ভালো পথে এগোনো যায় সেদিকে চেষ্টা করতে হবে। কারণ তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো মনে হয় অত সকালে কেউ অত যায় না, আর দেরি করে গেলে তো একটু ভিড়টা বেশি হয়, তো ভিড়টা বেশি ওই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো লাইনে। তাড়াতাড়ি গেলে তোমার হলো
তাড়াতাড়ি গিয়ে ভোটটা দেওয়া যাবে। খুব এক্সাইটিং ফিল হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে। এতদিন পর্যন্ত আমরা সবাইকে দেখেছি, তো এখন নিজেরা যখন এইটা করতে পারছি তখন খুব ভালো লাগছে। আজকে অফিসে এসেছি এ বিষয়ে ভোট দেওয়ার জন্য কি কি করতে হয়, কি কি করতে হবে, কি কি সব বিধি নিয়ম আছে, এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় বিডিও অফিসার যে আছেন তিনি আমাদের এই সম্বন্ধে বললেন, তো তারই একটা অংশগ্রহণ করতে আমি এসেছি। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।